शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে AIMIM এর প্রার্থী দানিশ আজিজের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করে গেলেন AIMIM এর সুপ্রিমো আসাউদ্দিন ওয়েসে। সভা থেকে এদিন বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরোধিতায় সরব হন তিনি। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 9টি বিধানসভা আসনের জন্য 67 জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চলেছেন। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভায় সর্বাধিক 12 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সর্বনিম্ন 5 জন প্রার্থী এবারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রানীগঞ্জ বিধানসভায় 7 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবারের নির্বাচনে। রানীগঞ্জ বিধানসভায় 2,50,409 জন ভোটাররা করবেন এই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 252 জন করোনা পজিটিভের হদিশ মিলেছে। পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে এক করোনা পজিটিভের। গত 3 দিনেই জেলায় কমপক্ষে 700 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আগামী 14 এপ্রিল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করতে আসছেন আসানসোলে। আগামী 26 এপ্রিল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার বৈঠক যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। রানীগঞ্জ লায়ন্স ডিএভি পাবলিক স্কুলের তরফে আর্য সমাজের 147তম স্থাপনা দিবস উপলক্ষে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন। এই উপলক্ষেই দুস্থদের খাওয়ানো হলো পাত পেড়ে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন 1 ডজনেরও বেশি বিজেপি কর্মী। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দিয়ে দলে স্বাগত জানালেন কুলটি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে। এলাকার একটি পুকুরের পাড়ে একটি ড্রামের মধ্যে রাখা ছিল বোমাগুলি। নির্বাচনের আগে বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভোট এগিয়ে আসতেই প্রচারে জোর তৃণমূল কংগ্রেসের। মঙ্গলবার আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মলয় ঘটক করলেন জোর কদমে প্রচার। পাশাপাশি তৃণমূলের জেলা পার্টি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন তৃণমূলের জেলা কোঅর্ডিনেটর ভি শিবদাসন দাসু। आसनसोल उत्तर विधानसभा केंद्र से AIMIM के उम्मीदवार दानिश अजीज के समर्थन में चुनावी सभा करने आसनसोल पहुंचे AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी एवं तृणमूल कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। ओवैसी की एक झलक पाने के लिए समर्थक हुए बेताब।
आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के AIMIM के प्रत्याशी दानिश अजीज के समर्थन में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। आसनसोल के रेलपार इलाके में ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उनकी सभा को लेकर पहले से ही व्यापक स्तर से तैयारियां की गई थी। इससे पहले गत 9 अप्रैल को रेलपार में ओवैसी की सभा होनी थी, लेकिन आखिरी समय में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं मिलने से सभा रद्द हो गई थी। लेकिन मंगलवार को जब ओवैसी रेलपार इलाके में सभा करने पहुंचे तो उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में उनके समर्थक सभा में पहुंचे थे। ओवैसी को लेकर समर्थकों में किस कदर जुनून था, इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर ही लगाया जा सकता है कि मंच पर एक साथ में बड़ी संख्या में लोग मंच पर चढ़ गए और उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। बाद में कुछ लोगों को मंच से नीचे उतारना पड़ा। सभा को संबोधित करते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में कोई फर्क नहीं है और यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी माँ बहनों से अपील है, बुजुर्गों से अपील है कि आप याद रखिए मेरी इस बात को, ममता बनर्जी में नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं। ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं बंगाल की जनता को और अपने बयानात से, अपनी बातों से। 10 साल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताओ TMC तुमने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया। ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करती है, मुसलमानों को देखती है तो सर पर ओढ़नी पहन लेती है, अल्लाह अकबर कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। अरे क्या ये तमाम बातें करने से हमारे बच्चों को स्कूल मिलेगा, हमारे नौजवानों को हायर एजुकेशन का कॉलेज मिलेगा? आपके पास एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही, बरसों से स्कूल की बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं होता। ये नाटक कंपनी है। ममता बनर्जी आकर सिर्फ इस तरह की बातें करके चले जाती हैं। पार्लियामेंट में मैंने देखा है कि इनके MP बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, मगर जब हम वोट का डिमांड करते, ट्रिपल तलाक का कानून आया तो ममता बनर्जी के MP ने ट्रिपल तलाक के कानून में वोटिंग में हिस्सा नहीं किया, सिर्फ लोकसभा से वॉकआउट कर गए। सिटीजन CAA का बिल आया तो फिर उस वक्त वॉकआउट कर गए। आप बताइए, आपको क्या इसी पार्टी का साथ देंगे जो दिल्ली में लोकसभा में बैठकर नरेंद्र मोदी के साथ पूरा कुश्ती करती है? इसके साथ ही ओवैसी ने हुंकार भरते हुए बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि देश के मुसलमानों को कोई डरा नहीं सकता है। संसद में भी बीजेपी के सांसदों से आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं, इसलिए देश के मुसलमानों को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूँ कि आप हमको डरा नहीं सकते। मैंने पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 MP की आंखों में आंखें डालकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने CAA के कानून को फाड़ दिया था। मैं आपको गुजारिश करने आया हूँ कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहली मर्तबा आसनसोल को आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मेरी जिंदगी बाकी रखी तो बार बार आपके दरमियान में आऊंगा और आपसे अपील कर रहा हूँ कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। TMC के गुंडों ने दानिश को मारा, मगर याद रखो एक दिन तुम्हारे जुल्म का खात्मा होगा, तुम्हारा ये जुल्म खत्म होगा, तुम्हारी ये गुंडागर्दी खत्म होगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों पर हमला करने से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कूच बिहार जिले के सीतलकुची इलाके में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने मन से ही फायरिंग में मारे गए लोगों के नाम पढ़े और इस घटना को लेकर भी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ निशाना साधा। हमीदुल हक, समीउल हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोली का शिकार हो गए। वहीं पर आनंद बर्मन की भी मौत हुई, मगर ये 4 बच्चे मारे गए और आनंद बर्मन के साथ 5। तो हम ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमीदुल हक, समीउल हक,
मोइनुल और नूरुल इस्लाम की लाशों पर अपना सियासी महल तामीर करोगी, क्या मासूमों के खून को इस तरह गिराया जाने दोगी। और दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि शीतल कुर्सी की तरह दिलीप घोष कहते हैं कि और 4-5 वाकयात होने चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या बंगाल में गरीब जनता की खून की अहमियत नहीं है? क्या बंगाल में आनंद बर्मन, हमीदुल हक, समीर हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम की खून की अहमियत नहीं है? ये मरने वालों के घर में इनकी बीवियां थी, इनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी बेवा हो गई, उनके माँ बाप अपनी औलाद से महरूम हो गए। मैं यकीनन ये जो सीआईएसएफ ने फायरिंग की उसकी कंडेम करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 67 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 5 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के चुनावी रण में 9 विधानसभा सीटों पर 67 प्रत्याशियों के बीच भिड़ंत होगी। आगामी 26 अप्रैल को यहां मतदान होगा। सोमवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर उनको चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कर दिया गया। जिले में सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवारों ने दुर्गापुर पश्चिम सीट से नामांकन किया है। उसके बाद 10 उम्मीदवार दुर्गापुर पूर्व से हैं। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट में नामांकन करने वाले हैं। वहीं पांडेश्वर से 8, रानीगंज और आसनसोल उत्तर से 7-7, कुल्टी और बाराबनी से 6-6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी सीटों पर मुख्य रूप से त्रिकोणीय मुकाबला टीएमसी, बीजेपी और संयुक्त मोर्चा के बीच माना जा रहा है। अब देखना है कि जिले में निर्दलीय उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ते हैं। रानीगंज विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी तापस बैनर्जी, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी, सीपीएम प्रत्याशी हेमंत कुमार प्रभाकर, जेडीयू प्रत्याशी राजकुमार, बीएमपी प्रत्याशी नीलकंठ बावरी, बीएसपी प्रत्याशी अभिजीत बावरी, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रत्याशी नीरज रजक चुनाव लड़ रहे हैं। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के 2,50,409 वोटर्स करेंगे इन प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला होने की संभावना है। रानीगंज समेत पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों के लिए 7वें चरण के तहत आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। आखिरी दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस तरह से देखा जाए तो रानीगंज विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी तापस बैनर्जी, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी, सीपीएम प्रत्याशी हेमंत कुमार प्रभाकर शामिल हैं। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी राजकुमार, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिजीत बावरी, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी नीलकंठ बावरी और पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रत्याशी नीरज रजक भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे तो रानीगंज विधानसभा सीट से 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और त्रिकोणीय लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। दरअसल चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्ष 2011 में रानीगंज विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस की झोली में गई थी, लेकिन वर्ष 2016 में फिर से सीपीएम ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से लगभग
31,710 वोटों की लीड मिली थी, जबकि वर्ष 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोटों के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी। इस तरह से देखा जाए तो एक तरफ जहां सीपीएम के सामने रानीगंज विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस फिर से जीत का परचम लहराने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी की कोशिश पहली बार यहां कमल खिलाने की है। रानीगंज विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे 7 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2,50,409 मतदाता मिलकर करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,515 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,20,891 है। थर्ड जेंडर के 3 मतदाता हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के 2 नंबर बोरो के 11 वार्ड आते हैं। 33, 34, 35, 36, 37, 88, 89, 90, 91, 92 और 93 नंबर वार्ड शामिल हैं, जबकि अंडाल ब्लॉक भी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अधीन आता है। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे पब्लिक टाइम्स के साथ। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে
এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ঢুক দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। पश्चिम बर्धमान जिले में पिछले 24 घंटों में 252 नए कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और पिछले 3 दिनों में ही जिले में लगभग 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर कोहराम मचा है और हर रोज 1.5 लाख से भी ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के भी विभिन्न जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में भी हर रोज रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 252 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मौत हुई है। इस तरह से कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 174 हो गया है। वहीं 73 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 18,623 हो गया है, जबकि जिले में कोरोना वायरस के अभी भी 1,495 एक्टिव मामले हैं। अब तक लगभग 16,954 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं।
जबकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से 174 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिनों में ही जिले में लगभग 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी यह आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल जिस प्रकार से लोगों द्वारा कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का उल्लंघन और लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए अभी महामारी के और भयावह रूप धारण करने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 14 अप्रैल को आसनसोल में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 26 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान जिले में होने हैं विधानसभा चुनाव। राज्य में होने वाले 7वें चरण का चुनाव आगामी 26 अप्रैल को होगा। उसे लेकर जिले में जोर शोर से प्रचार चल रहा है। वहीं 14 तारीख को बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आसनसोल आ रहे हैं। आसनसोल उत्तर विधानसभा और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग 2 बैठक करेंगे। वे आसनसोल के बुद्धिजीवियों को लेकर बैठक करेंगे। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान करने की बात कहेंगे। उक्त बातें बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रमोद पाठक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 17 तारीख को निघा के एरोड्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। जनसभा को लेकर सोमवार को भूमि पूजन किया गया। उसके बाद जनसभा की तैयारी शुरू की गई। उन्होंने सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक विभिन्न पहलू पर चर्चा की। पत्रकार सम्मेलन में बीजेपी नेत्री सुधा देवी, त्रिशार कांति बैनर्जी, दिनेश सोनी, मनोज ओझा, अशोक संथोलिया, शनि सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। आसनसोल जिलार सर्वभारतीय बीजेपी सभापति पदार्पण करবেন आगामी 14 এপ্রিল। সেই সূচনা দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে আমরা উপস্থিত হয়েছি। মাননীয় জেপি নাড্ডাজি মহাশয় তার যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিতে একটা বিশেষ বার্তা দিতে চান। সমাজের যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার মত বিনিময় করবেন এবং তাদের কাছে আগামী দিনে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে যে ভাবনা, সেই ভাবনাকে তিনি তাদের কাছ থেকে নেবেন। এই যে উপলক্ষটা আর কিছু নেই, সামনে 21-এ আমাদের নির্বাচন, 21-এর যে সংকল্প, সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে আসানসোল জেলা শিল্পনগরী এবং কয়লা অঞ্চলের, এখানে যেমন একদিকে কৃষ্টি আছে, সংস্কৃতি আছে, সাহিত্য আছে, মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য ভাবাবেগ আছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से आर्य समाज के 147वें स्थापना दिवस पर नर नारायण सेवा की गई। अमृत कुंज आश्रम के पास डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुचारिता चैटर्जी के नेतृत्व में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा के तत्वाधान में मंगलवार को रानीगंज लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से आर्य समाज का 147वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुचारिता चैटर्जी समेत तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। इस दौरान स्कूल के तरफ से शहर के एनएसबी रोड स्थित अमृत कुंज आश्रम के पास नर नारायण सेवा की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुचारिता चैटर्जी समेत तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं नर नारायण सेवा में शामिल हुए और उन्होंने खुद अपने हाथों से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसा। डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुचारिता चैटर्जी ने बताया कि सन 1875 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य लोगों में शिक्षा के और अधिक प्रचार प्रसार तथा विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, छुआछूत और अंधविश्वास से समाज को मुक्त कराना था। उनके इन्हीं उद्देश्य को आत्मसात करते हुए स्कूल के तरफ से आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया गया है। यह कार्यक्रम आगामी 19 अप्रैल तक डीएवी के संस्थापक महात्मा हंसराज के जन्म दिवस तक चलेगा। उन्होंने कोरोना संकट काल में
इस सेवामूलक कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा की पश्चिम बंगाल की प्रमुख पापिया मुखर्जी को दिया और कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা, মনপসন্দ। मैं रवि केसरी, बीजेपी रानीगंज मंडल 1 का कोषाध्यक्ष आप सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 विधानसभा सीटों से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए एवं पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने में अपना बहुमूल्य समर्थन दे। भारत माता की जय। अब की बार मोदी सरकार। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए 1 दर्जन बीजेपी के कर्मी एवं समर्थक। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल चैटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाकर दल में किया शामिल। आसनसोल नगर निगम के 68 नंबर वार्ड अंतर्गत बराकर इलाके में दर्जनों बीजेपी समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल चैटर्जी की उपस्थिति में बीजेपी छोड़कर आए युवाओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। उज्जवल चैटर्जी ने पार्टी में शामिल हुए युवाओं के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ाया। शत्रुघ्न मंडल, गुरा मंडल, ललन ठाकुर, बाला साव, श्रवण साव, चक्रधारी पांडे, रवि यादव, सूरज भगत, संतोष रवानी, नंदलाल मंडल, राजेश मंडल, अविनाश रवानी, मोनू मंडल, धारो मंडल, पिंटू मंडल और श्याम भगत समेत अन्य समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल चैटर्जी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है और केंद्र की बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त है। यही वजह है कि सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी पार्टी से मोह भंग हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों और आदर्शों से प्रभावित होकर बीजेपी के कार्यकर्ता अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जितने भी हमारे बीजेपी से टीएमसी में आए हैं उनसे गुजारिश है कि उज्जवल से अपने हाथ से झंडा धराएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ताजा বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে। এলাকার একটি পুকুরের পাড়ে একটি ড্রামে রাখা ছিল ওই তাজা বোমাগুলি। নির্বাচনের আগে বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক দলের উত্তাপ বাড়ছে। মঙ্গলবার সকালে 6-7টি তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দুর্গাপুরের কান্ডেশ্বর গ্রাম এলাকায়। বোমা উদ্ধারকে ঘিরে রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ওয়ারিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াড। বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। জানা গিয়েছে এলাকারই একটি পুকুরের পাড়ে এদিন একটি ট্রেনের ড্রামে প্রায় 10টি সুতলি বোমা রাখা ছিল। নির্বাচনের আগে কে বা কারা ওই নির্জন স্থান এলাকায় বোমাগুলি রেখে গেল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা নিয়ে আতঙ্কিত এক গ্রামবাসী বলছেন, এসে দেখেছি আমরা এই মাঠ দিকে এসেছি, এসে দেখছি ট্রেনের মধ্যে বোম আছে, আমরা ভয় আছি, তার জন্য পুলিশকে ডাকা হয়েছে। পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসছে। কিভাবে এই বোম এলো কিছু জানা গেছে? না, বলতে পারবো না। কি বোম রয়েছে কিছু দেখা গেছে? না, দেখছি আমাদের কাছে যাই নাই, সামনে। কি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে? এখান থেকে তো শুনছি নাকি বোম আছে। কিসের মধ্যে রয়েছে? টিনের মধ্যে, একটা রঙের টিনের মধ্যে। কতগুলো আছে কিছু জানা গেছে? না, বলতে পারবো না কটা আছে। আতঙ্কে আছেন? আতঙ্কে তো আছে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকুন। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, गिरजापाड़ा, रानीगंज।
ভোট এগিয়ে আসতেই নানাবিধ প্রচারে চমক আনছেন সব দলের প্রার্থীরা। মঙ্গলবার আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মলয় ঘটক করলেন জোর কদমে প্রচার। অন্যদিকে তৃণমূলের জেলা পার্টি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিজেপির বিরোধিতায় সরব হলেন ভি শিবদাসন দাসু। হাতে বাকি মাত্র কটা দিন, তার আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নিজের নিজের দলের হয়ে প্রচার চালাচ্ছেন জোর কদমে প্রচার চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের। আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে এদিন আসানসোলের জিটি রোড ধরে বিশাল বাইক মিছিল করলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। অন্যদিকে হুডখোলা গাড়িতে নিজের বিধানসভা এলাকায় ঘুরে প্রচার করেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মলয় ঘটক। দলীয় ঝান্ডা এবং বেলুন হাতে কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন। এদিন আসানসোলে তৃণমূলের জেলা পার্টি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কোঅর্ডিনেটর ভি শিবদাসন দাসু। বিজেপির প্রকাশ করা নির্বাচনী ইস্তেহারের বিরোধিতায় সরব হন এদিন ভি শিবদাসন দাসু। বলেন, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके आता है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके आता है, इसी में तो आप जीत के आ रहा हूं, इसलिए आपको इंसाफ देने का है, हम लोग को नहीं है। हम लोग 10 बरस काम किया है, आप 7 बरस जो काम किया है वही इंसाफ आप दीजिए। और हमारा दीदी पश्चिम बंगाल में 10 बरस राज किया है, ये 10 बरस का इंसाफ ममता दी पश्चिम बंगाल के जनता को मैनिफेस्टो के जरिए दिया है और 68 तो प्रोग्राम को बना के सक्सेस करके दिखाया है। और आप क्या किया, आप 10 तो वादा किया, उसमें 2 तो आप किया है, एक तो 370 धारा कश्मीर और एक तो आपको राम मंदिर का इश्यू, ये छोड़ के आप क्या किया है तो आपको सोचने का है। और आपको पाई का इंसाफ आपको देना है। ये भारतवर्ष का जनता आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। ममता दी को जवाब देने का नहीं, आपको जवाब देना है। ममता दी बहुत काम किया है पश्चिम बंगाल के। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ভি শিবদাসন দাসু বলেন, बीजेपी का दलाल होके काम मत करिए। आप लोग हम लोग सलाम करता है, आप लोग देश का सुरक्षा के लिए काम करता है दिन रात, आप लोग को प्रणाम कर रहा हूं। तो आप बीजेपी का एजेंट होके काम नहीं करना है, बीजेपी का दलाल होके मत करना है और एक पार्टी को जिताने के लिए उसका समर्थन में मत आइए। आप निष्पक्ष काम करिए। यही हम लोग केंद्रीय सेना को बोलने चाह रहा हूं, जिसका जो चार्ज में है उन लोग को ये बात हम लोग बोलने चाह रहा हूं। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে AIMIM এর প্রার্থী দানিশ আজিজের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করে গেলেন AIMIM এর সুপ্রিমো আসাউদ্দিন ওয়েসে। সভা থেকে এদিন বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরোধিতায় সরব হন তিনি। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 9টি বিধানসভা আসনের জন্য 67 জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চলেছেন। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভায় সর্বাধিক 12 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সর্বনিম্ন 5 জন প্রার্থী এবারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রানীগঞ্জ বিধানসভায় 7 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবারের নির্বাচনে। রানীগঞ্জ বিধানসভায় 2,50,409 জন ভোটাররা করবেন এই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ।
পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 252 জন করোনা পজিটিভের হদিশ মিলেছে। পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে এক করোনা পজিটিভের। গত 3 দিনেই জেলায় কমপক্ষে 700 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আগামী 14 এপ্রিল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করতে আসছেন আসানসোলে। আগামী 26 এপ্রিল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার বৈঠক যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। রানীগঞ্জ লায়ন্স ডিএভি পাবলিক স্কুলের তরফে আর্য সমাজের 147তম স্থাপনা দিবস উপলক্ষে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন। এই উপলক্ষেই দুস্থদের খাওয়ানো হলো পাত পেড়ে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন 1 ডজনেরও বেশি বিজেপি কর্মী। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দিয়ে দলে স্বাগত জানালেন কুলটি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে। এলাকার একটি পুকুরের পাড়ে একটি ড্রামের মধ্যে রাখা ছিল বোমাগুলি। নির্বাচনের আগে বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভোট এগিয়ে আসতেই প্রচারে জোর তৃণমূল কংগ্রেসের। মঙ্গলবার আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মলয় ঘটক করলেন জোর কদমে প্রচার। পাশাপাশি তৃণমূলের জেলা পার্টি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন তৃণমূলের জেলা কোঅর্ডিনেটর ভি শিবদাসন দাসু। এখন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।